Yes, my dear students, welcome once again to the session of accounts. Today we are taking up new chapter. The name of the chapter is Account for Not for Profit Concern. Account for Not for Profit Concern. You see, there are two trading organizations. There are two type of trading organization. One is there are two type of organization. One is trading organization and the other one is non-trading organization. Trading organization are also known as profit-making organization and non-trading organization are also known as not-for-profit organization. The main object of trading organization is to earn profit. Their main object is to earn profit. And to know the profit, they make final account. The final account consists of trading and profit and loss account and the balance sheet are prepared. To know the results, trading and P&L account are prepared, and to know the financial position, balance sheet is prepared, that we have very well seen in the previous chapter. The base of the final account is the trial balance. Trial balance is the base of final account. Now, what is the meaning of not-for-profit organization? Not-for-profit organization, the main aim of these organization is to provide the service to the members or to the society at large. Their primary purpose is not to make profit. Example of non-profit organization are sports club, charitable, hospital, school, colleges, universities, trade union, cricket club of India, and so on and so forth. Their main object is to give the services to the members or to the society at large. They maintain their books of account, but they maintain the books of account in a different way. Now, how do they maintain their books of account and how do they prepare a final account? As the main motive is not to earn profit, the not-for-profit organization do not prepare profit and loss account. In place of profit and loss account, they prepare income and expenditure account. What is income and expenditure account? It is very much similar to profit and loss account. Like in profit and loss account, on one side, gross profit and indirect income come. Here also in income and expenditure account, one side the income come and on the debit side or the other side, all the expenditure come. We will discuss them in length. Also, the not-for-profit organization do not prepare trial balance, they prepare receipt and payment account. What is receipt and payment account? It is a summary of cash transaction. I will show you how it looks like. This is, you see, all what you are receiving appears on the debit side and all what you are paying, it is misprint in your textbook. All what you are paying come on the credit side, payment side. Yeah, in place of receipt it is payment. So make a correction. Here all the payments come and here all the receipt of the year come. So it is a summary of cash received and cash. It is summary of cash received and cash paid. These organizations also prepare, the not-for-profit organization also prepare balance sheet to know the financial position of the concern. So the final accounts of a not-for-profit organization consist of income and expenditure account and balance sheet. And the final account of partnership concern consists of trading account, P&L account and balance sheet. The final accounts of not-for-profit organization will consist of income and expenditure account and balance sheet. Income and expenditure account also I will show you students how it looks like. Let us, it look like that. Here, like all the expenses used to come in profit and loss account, here in the expenditure side, all the
expenses will come, and in the income side, all the income will come. So we are going as per your textbook. The next is, what is the meaning of not-for-profit concern? As I have already explained you, the main purpose is not to earn profit, but to provide service to its member or to its society. But for providing services, it will need to have some income. So it collect income from its member through subscription. So what is subscription? It is like fees. For example, 50% in your classroom, and or you start playing cricket, you form cricket club. So you will collect fees from each student. This is known as subscription. Then some admission fee will be charged. Some people will give donation, or outsider may also give donation. Then the government may also give subsidies or grants. So all this will form part of income for non-profit organization. What are the features of non-profit organization? First is, the primary object is to provide services to its member and not to earn profit. I've already explained you. They are formed for the promotion of art, culture, education, or any social purpose, like for promotion of health, well-being of health of the members. The members do not get any dividend. You cannot pay dividend to its members. Now, how will the not-for-profit organization be managed? It will be managed by electing representative from its member. जो एनपीओ के सारे मेंबर्स है ना, वो मिल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर लेंगे, और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उस संस्था को चलाएंगे. आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और बैलेंस शीट बनाते हैं. अच्छा, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट कैपिटल कंट्रीब्यूट करते थे प्रोप्राइटर और पार्टनर्स, उस तरीके से एनपीओ में भी एक कैपिटल फंड बनता है. ये कैपिटल फंड किसका होता है? क्या क्या चीजें मिलके ये कैपिटल फंड बनाती है? एंट्रेंस फीस, सरप्लस, लेगेसीज. देखो, एंट्रेंस फीस, जब आप क्लब के मेंबर बनते हो या किसी भी संस्था के मेंबर बनते हो, तो ज्वाइन करने के लिए आपको एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है. हर साल जो आपकी इनकम खर्चे से ज्यादा होती है उसे सरप्लस कहा जाता है. लेगेसीज क्या होती है? जब कोई आदमी अपनी वसीयत, अपनी विल के द्वारा कोई डोनेशन किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को देता है, उसे लेगेसी कहा जाता है. जब कोई आदमी अपनी विल के द्वारा कोई पैसा या अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को देता है, उसे लेगेसी कहा जाता है. अच्छा, अब डिस्टिंक्शन क्या क्या है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? द प्राइमरी objective is to earn profit. The primary objective is to provide service to the society. ये ट्रायल बैलेंस बनाती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ये ट्रायल बैलेंस नहीं बनाती है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? अपन पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर डिवोट करेंगे. मैंने आपको बताया था, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक. एक साइड पूरे साल में जो आपने इनकम रिसीव करी या कुछ और रिसीव करा वो आता है, और एक साइड में जो भी आपने पेमेंट करा वो आता है. इसके फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट. यहाँ पे फाइनल अकाउंट में इसने रिसीप्ट एंड पेमेंट लिख दिया, लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं होता है, ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट का पार्ट होता है. तो यहाँ पे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, और बैलेंस शीट दोनों में ही बनती है. अब अपन ने देखा था पार्टनरशिप फॉर्म में कि अगर इनकम ज्यादा होती है तो नेट प्रॉफिट बोलते हैं, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है तो नेट लॉस कहा जाता है.
यहाँ पे अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सरप्लस। और अगर खर्चा ज्यादा है तो उसे लॉस नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट। यहाँ पे ओनर के फंड क्या क्या होता है, उसकी कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है। यहाँ पे जो कैपिटल फंड होता है वो किन किन चीजों को मिलके बनता है, सरप्लस से, सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से बनता है। अब ये अपन ने देखे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब अपन को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बुक्स मेंटेन करने की जरूरत क्यों होती है, व्हाट इज द नीड फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ये कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं करते हैं, ये सोसाइटी को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये पब्लिक मनी में डील करते हैं। किस में डील करते हैं, पब्लिक मनी में। पब्लिक इनको बहुत सारा पैसा देती है, वो पैसा किस किस फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, सब्सक्रिप्शन में, डोनेशन में, फीस में। तो जब ये पब्लिक से पैसा कलेक्ट करते हैं तो ये पब्लिक को आंसरेबल है कि इन्होंने जो पैसा कलेक्ट किया है उसका खर्चा कैसे करा है, कहां कहां पे उसको खर्च करा है। जब तक अपन अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे अपन को ये पता नहीं पड़ेगा अपन ने कैसे कैसे खर्चा करा है या कैसे कैसे कहां कहां से अपने को इनकम मिली है। तो इन कारणों से अपन को अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। अब अपन, क्योंकि अपन डिटेल में देखते हैं अपन अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं। टू कीप अ प्रॉपर कंट्रोल ओवर द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अगर अपन अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, हिसाब किताब नहीं रखेंगे, तो पैसे के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। किस आइटम में, किस हेड में, मतलब वेजेस में कितना खर्चा करना है, स्टेशनरी पे कितना खर्चा करना है, अपन को कुछ पता नहीं पड़ेगा। तो खर्चे के ऊपर या सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए अपन को अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। किस किस हेड में अपन को इनकम हो रही है वो मैंने आपको बता ही दिया। अपन को पता करना होता है कि किस किस हेड में अपने को इनकम हो रही है या किस किस हेड में अपने को एक्सपेंडिचर हो रहा है। अच्छा, फिर अपन को कई कानून के प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ता है। जैसे अपनी हाउसिंग सोसाइटी होती है ना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, अकाउंट सरकार को बताने पड़ते हैं, उनका ऑडिट कराना पड़ता है, कई तरीके के रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं। तो कानून के प्रावधानों को कंप्लाई करने के लिए, कानून के नियमों का पालन करते हुए अपने को अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। फिर भले से ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनको भी पता होना चाहिए ना कि साल के एंड में इनकम ज्यादा हो रही है या खर्चा ज्यादा हो रहा है। अगर इनकम ज्यादा होती है तो उसे सरप्लस बोलते हैं, अगर खर्चा ज्यादा हो रहा है तो उसे डेफिसिट बोलते हैं। तो इनकम ज्यादा हो रही है या खर्चा ज्यादा हो रहा है, ये पता करना है अपने को। इसलिए भी अपने को मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपने अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। और एनपीओ की नेट वर्थ कितनी है, नेट वर्थ मतलब आपके असेट में से लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो अपनी नेट वर्थ आती है। तो ये पता करने के लिए कि अपनी पास नेट असेट कितने हैं, ये पता करने के, जब तक अपन बनाएंगे नहीं अपने को पता नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर अपन हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो कई तरह के घोटाले हो सकते हैं, गलत प्रैक्टिसेस हो सकती है, कोई पैसा का गबन कर सकता है, मिस एप्रोप्रिएशन या मैल प्रैक्टिसेस। तो इसलिए अपने को कोई असेट लेके भी अपने पास असेट का रिकॉर्ड ही नहीं है, एक कैलकुलेटर खरीदा, एक कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, कोई उसका हिसाब किताब नहीं रखा, कोई उसको लेके चला गया, तो अपने को पता नहीं लग पाएगा। इसलिए इन सब कारणों से अपने को अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। अच्छा, अब रिसीप्ट एंड पेमेंट का अपन के अकाउंट स्टेटमेंट में क्या क्या बनाते हैं अपन, यहाँ पे एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या मतलब होता है, ये कौन से किस तरह का अकाउंट होता है। अपन ने 3 तरह के अकाउंट पढ़े हैं 11वीं क्लास में, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये कैश और बैंक से रिलेटेड है, तो ये रियल अकाउंट होता है। मेनली ये कैश से रिलेटेड है, इसमें बैंक बैलेंस भी आता है, इसको रियल अकाउंट कहा जाता है।
तो इसको ये क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। तो आपको क्या लिखना होगा, रियल अकाउंट, ये एक रियल अकाउंट है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसमें केवल पैसा आया और पैसा गया, उधारी का ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है। इट रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। All receipts are shown on the debit side and all payment are shown on the credit side. अच्छा, अब इसमें क्या है, रिसीप्ट में, रिसीप्ट साइड में दो साइड होती है रिसीप्ट एंड पेमेंट की, एक रिसीप्ट साइड और एक पेमेंट साइड। डेबिट साइड इस तरह से होता है, डेबिट साइड में सारी रिसीप्ट आती है। तो अपन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो बनाते हैं एक साल के लिए, लेकिन इस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जैसे अपना करंट ईयर चल रहा है 2021 का, मैं रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाऊंगा 2019 2020 और 2021 के लिए, 2021 के लिए बनाऊंगा। लेकिन अगर 19-20 के लिए भी मुझे कुछ पैसा मिला है, 18-19 का भी मुझे कोई पैसा मिला है, तो वो भी कोई से भी ईयर की रिसीप्ट हो, करंट ईयर के अलावा पिछले साल की भी रिसीप्ट हो, या आने वाले साल के लिए भी आपको कुछ पैसा मिला है, कुछ मेंबर्स एडवांस पेमेंट भी करते हैं ना, अगर फ्यूचर ईयर्स के लिए भी कोई पेमेंट मिला है तो वो भी रिसीप्ट में आ जाएगा। मतलब इसमें प्रीवियस ईयर का भी पैसा अगर मिला है तो आएगा, करंट ईयर का भी आएगा, और आने वाले सालों का भी पैसा अगर आपके पास आया है तो इसमें लिखा जाएगा। उसी तरीके से पेमेंट में भी प्रीवियस ईयर का कोई पेमेंट आपने किया है, करंट ईयर का भी किया है और आने वाले सालों का भी पेमेंट किया है, तो आप पेमेंट साइड में लिखेंगे। मतलब जो भी रिसीप्ट हुई है कोई से भी साल की, वो रिसीप्ट साइड में आएगी। कोई भी पेमेंट कोई से भी साल का हुआ है, प्रीवियस ईयर का, कमिंग ईयर्स का या करंट ईयर का, वो आएगा। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। इट इज सिमिलर टू द कैश बुक। यह समरी है कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस की। इट इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट आपके दो तरीके के हो सकते हैं। 11वीं क्लास के पहले चैप्टर में आप देखिए अपन ने पढ़ा है, रिसीप्ट्स दो तरह की होती है, रेवेन्यू और कैपिटल। पेमेंट भी दो तरह का होता है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा कैपिटल और रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, 11वीं में आप पढ़ चुके हैं। It record all receipt and payment made during a particular year, whether related to current year, previous year or next year. ये मैं आपको समझा चुका हूं। इनकम रिसीवेबल एंड इनकम पेबल आर नॉट रिकॉर्डेड। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई इनकम आपने कमा ली है, आपको मिली नहीं है, आपको मिलना बाकी है, अगर कोई इनकम मिलना बाकी है तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होती है। अगर कोई एक्सपेंडिचर आपने इनकर कर लिया है लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया है, जैसे आपने बिजली यूज कर ली है लेकिन बिजली के बिल का पेमेंट नहीं किया है, तो वो इसमें नहीं आएगा। अमाउंट पेबल, आपको जो पैसा देना बाकी है वो अमाउंट पेबल हुआ ना, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है तो वो इसमें नहीं आएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इनकम रिसीवेबल एंड अमाउंट पेबल आर नॉट रिकॉर्डेड। केवल जो कर दिया है वो ही इसमें आएगा। अब ये जो रिसीप्ट एंड पे, जैसे अपन ने देखा पार्टनरशिप में ट्रायल बैलेंस इज अ बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। यहां पे फाइनल अकाउंट बनाने का बेस क्या है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनपीओ। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अच्छा, अब इस अकाउंट में क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस मैं आपको बताऊं, इस अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कैश इन हैंड या कैश इन बैंक का ओपनिंग बैलेंस होता है, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो जो बचा हुआ आपके पास कैश इन हैंड या कैश एट बैंक है वो होता है। अपन इसको पूरी डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी बात आई है तो मैंने आपको एक रेफरेंस दे दिया है। ओपनिंग बैलेंस आएगा और क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा। अब अपन देखते हैं
कि अपन ने देखा था इट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ रिसीट, कैपिटल और रेवेन्यू। अपन देखेंगे कि रेवेन्यू रिसीट का क्या मतलब होता है और कैपिटल रिसीट का क्या मतलब होता है। अब देखते हैं पहले कैपिटल रिसीट। वो सारी रिसीट जो रेवेन्यू, वो सारी रिसीट जो नॉन रेकरिंग नेचर की होती है। नॉन रेकरिंग का मतलब जो बार बार नहीं होती है। नॉन रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब बार बार, नॉन रेकरिंग का मतलब जो बार बार नहीं होती है। वो सारी रिसीट जो नॉन रेकरिंग नेचर की है, जो बार बार नहीं होती है, एंड विच डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, और जो इनकम का पार्ट नहीं है, जो बार बार नहीं होती है और जो इनकम नहीं है, ऐसी रिसीट्स को अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट्स। जैसे अपन को बिल्डिंग के लिए पैसा मिला, तो बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा मिला, तो बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा बार बार नहीं मिलता है, और ये इनकम का पार्ट नहीं है, रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं है। आपको लाइफ मेंबरशिप फीस मिली, लाइफ मेंबरशिप फीस जब मेंबर बनता है तो केवल लाइफ में एक बार देता है, बार बार नहीं देता है। तो जो इनकम बार बार नहीं होती है और जो रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम का पार्ट नहीं है, उसे कैपिटल रिसीट बोलते हैं। जैसे आपने फर्नीचर बेचा, मशीनरी बेची, तो फर्नीचर बेच के जो पैसा मिला, ये इनकम थोड़ी है। तो ऐसे रिसीट्स को, ऐसे पैसे आने को कैपिटल रिसीट्स कहा जाता है। अब रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? वो बार बार होती है, लगातार होती रहती है, सेल आपकी लगातार साल भर चलती रहती है, विच आर रेकरिंग इन नेचर एंड विच रिप्रेजेंट अ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आर नोन एज रेवेन्यू रिसीट्स। सच रिसीट्स विच आर रेकरिंग इन नेचर, जो लगातार होती रहती है साल भर और जो इनकम को रिप्रेजेंट करती है, उसको अपन रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। जैसे मेंबर लोग अपना फीस देंगे, अगर बैंक है तो उसको लॉकर का रेंट मिलेगा, हर साल मिलेगा, तो इस सब रिसीट्स को अपन क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट्स कहा जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से जैसे रिसीट्स दो तरह की होती है, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स, उसी तरीके से पेमेंट भी दो तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? विच आर नॉन रेकरिंग, मतलब जो बार बार नहीं होते हैं, और ये खर्चा अपन करते हैं, लेकिन इस खर्चे का बेनिफिट अपने को लंबे समय के लिए मिलता है। लंबे समय के लिए क्या हो सकता है? बियॉन्ड 1 ईयर, मतलब 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, बेनिफिट्स आर लाइकली टू रिसीव फॉर अ लॉन्ग पीरियड। उसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बार बार नहीं होते हैं। ऐसे खर्चों को अपन कहां पे बताते हैं? इनकम में नहीं बताते हैं अपन, क्या कहां पे बताते हैं? बैलेंस शीट के असेट साइड में बताते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये लगातार होते रहते हैं, बार बार होते हैं, और इनका बेनिफिट जो है करंट ईयर में एक्सपायर हो जाता है। जैसे 20-21 के लिए मैं अकाउंट्स बना रहा हूं, तो इसका बेनिफिट क्या है? रेवेन्यू खर्चा होगा तो उसका बेनिफिट उसी साल में खत्म हो जाएगा। अब ये एक और तरह का खर्चा आ गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी अपन 11वीं क्लास पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है? इट इज एन एक्सपेंडिचर बेसिकली ऑफ ए रेवेन्यू नेचर। ये खर्चा क्या होता है? रेवेन्यू नेचर के तरह का होता है, लेकिन इसका जो लाभ है, इसका जो बेनिफिट है, वो एक्सटेंड बियॉन्ड 1 ईयर करता है। लेकिन इससे जो अपन को बेनिफिट मिल रहा है, वो 1 साल के बियॉन्ड एक्सटेंड करता है। अब इसका एग्जाम्पल अपन समझते हैं। इसका क्या करते हैं? एग्जाम्पल अपन समझते हैं, इसको और अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट, कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट करा। अब एडवर्टाइजमेंट, जैसे अपना लक्ष्य पहन के चलो, अब टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है, इसके लिए बहुत ह्यूज अमाउंट, बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। अब जो व्यक्ति इस एडवर्टाइजमेंट को देखता है, तो एक बार उसने लक्स का बनियान खरीद लिया या कोई भी चीज खरीद ली, कोई भी आर्टिकल खरीद लिया, अगर उसको पसंद आया तो वो उसको सालों साल खरीदता रहेगा। तो कंपनी भले से एडवर्टाइजमेंट देना बंद कर देगी, उस साल के बाद कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं देगी, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट कंपनी को 1 साल के बाद भी मिलेगा।
तो इस तरह का खर्चे को अपन क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्या मतलब है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का? इट इज एन एक्सपेंडिचर बेसिकली ऑफ अ रेवेन्यू नेचर बट इट बेनिफिट एक्सटेंड बियॉन्ड वन अकाउंटिंग ईयर। जनरली 2-3 साल के लिए इसका लाभ जो भी संस्था है उसको मिलता है। तो अपन ने अभी क्या समझा, रिसीट्स और पेमेंट। रिसीट्स दो तरह की, कैपिटल और रेवेन्यू। पेमेंट भी बेसिकली दो तरह के होते हैं, और एक और तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह का होता है, वन बाय वन अपन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की सारी चीजों को समझते हैं। देखिए, रिसीट एंड स्पेसिमेन, मतलब स्पेसिमेन किस तरह का होता है। इन द बुक्स ऑफ जो भी संस्था का नाम होगा, जैसे क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, बॉम्बे हॉस्पिटल, जो भी संस्था है, जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग या फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 या 2021, जो भी साल है यहाँ पे लिख देंगे। फिर इस ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड होती है, सबको पता है, अपन 11वीं पढ़ के आए हैं। डेबिट साइड में अपन रिसीप्ट लिखेंगे, 2 कॉलम बना देंगे, इनर कॉलम आउटर कॉलम। उसी तरीके से ये रिसीप्ट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे पेमेंट। देखिए, आपकी ये बुक पहली बार छपी है, काफी गलतियां हैं। यहाँ पे आएगा पेमेंट, इस साइड डेबिट साइड आएगी रिसीप्ट, क्रेडिट साइड आएगा पेमेंट, 2 कॉलम अपन बना लेंगे। शुरुआत कैसे होगी? रिसीप्ट में आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आएगा, कुछ ना कुछ पिछले साल का कैश जो आपके बचा हुआ रह जाता है, वो इस साल का कैश ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। और बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस इसी अकाउंट में आप लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक। आपके पास अगर एक से ज्यादा बैंक हैं तो आप बैंक का नाम लिख सकते हैं, बैलेंस विथ यूको बैंक, बैलेंस विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैलेंस विथ विजय बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, टोटल आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मैंने क्या बताया, जो मेंबर संस्था को फीस पे करते हैं उसे सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। तो अपन ने रिसीप्ट एंड पेमेंट के फीचर्स पढ़ते समय एक बात समझी थी कि फीस मेंबर पे करेगा वो आएगी, भले से वो कोई से के साल की फीस दी हो, उसने 2 साल पुरानी दी हो तो भी इधर आएगी, 3 साल पुरानी दी हो तो भी यहाँ पे आएगी, उसी साल की दी हो तो भी आएगी, और एडवांस में पेमेंट कर दिया है तो भी यहाँ पे आएगी। आउटर कॉलम में अपन टोटल लिख देंगे। कोई से भी साल का फीस मेंबर ने दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है, वेदर इट इज ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और आने वाले साल का नेक्स्ट ईयर का भी दिया है, वो अपन रिसीप्ट में लिख देंगे। उसी तरीके से एंट्रेंस फीस भी रिसीप्ट में आती है। एंट्रेंस फीस जब आप मेंबर बनते वक्त जो फीस देते हो उसे एंट्रेंस फीस कहा जाता है। एडमिशन फीस, स्कूल्स कॉलेजेस में आप लोग एडमिशन हर साल एडमिशन फीस देते हैं, उसे एडमिशन फीस कहा जाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस, कई संस्थाएं अपने मेंबर्स को मेंबर्स बनाते वक्त, किसी को एडमिट करते वक्त एक लाइफ मेंबरशिप फीस लेती है, उसे आजीवन सदस्यता शुल्क जिसे कहा जाता है, वो अगर मिलती है तो वो भी रिसीप्ट साइड में आएंगे। लेगेसीज, लेगेसीज का मतलब मैंने आपको बताया है, अमाउंट रिसीव्ड अंडर अ विल। कोई आदमी अपनी वसीयत के द्वारा कुछ पैसा किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दान कर देता है तो उसे लेगेसीज कहा जाता है, अमाउंट रिसीव्ड अंडर अ विल। ये इस साल में आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेगेसी? अमाउंट रिसीव्ड अंडर अ विल। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट भी अस्पतालों को जो चैरिटेबल काम करते हैं, जो स्कूल चैरिटेबल काम करते हैं, उनको कुछ ना कुछ ग्रांट देती है तो वो भी गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ पे आएगी। डोनेशन, कई
कई व्यक्ति जो चंदा देते हैं, डोनेशन देते हैं, वो भी यहाँ पे आएगा। डोनेशन जनरल भी हो सकता है और कोई स्पेसिफिक काम के लिए हो सकता है। किसी आदमी ने ₹1,00,000 दिया कि भाई मेरी तरफ से बिल्डिंग बना लेना, 10 करोड़ रुपया दिया मेरी तरफ से एक बड़ा स्टेडियम बनवा लेना। तो जो भी पैसा मिला वो प्राइज फंड के लिए भी मिल सकता है, किसी काम के लिए भी मिल सकता है। वो फंड का नाम लिख देंगे और उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर अपने को कोई डिविडेंड मिला, डिविडेंड का मतलब जो कंपनी के शेयर्स अपन खरीदते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी अपने को रिटर्न में कुछ पैसा देती है, इनकम देती है, उसे डिविडेंड कहा जाता है। अपने पास कोई हॉल है, कोई बिल्डिंग है, अपन ने किराए पे दी, उसका किराया अपने को मिला, वो अपनी इनकम है, वो इधर आ जाएगा, रिसीट साइड में आ जाएगा। कोई और इनकम अपने को मिली, कोई पुराना मटेरियल अपन ने बेचा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ओल्ड न्यूज़पेपर की रद्दी बेची, पैसा आया, जो भी पैसा आएगा वो इस साइड आता जाएगा। कोई छोटी मोटी और इनकम हुई, वो भी इस साइड आ जाएगी। टूर्नामेंट, कोई अपन ने टूर्नामेंट करवाया, मैच करवाया, अपने पास कुछ, जैसे क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया है, मैच करवाता है ना, तो उसको टूर्नामेंट का करवाने के लिए पैसा मिलता है, वो भी उसकी रिसीप्ट में आएगा। क्रिकेट फीस, आप लोग पढ़ते हो, ट्यूशन फीस देते हो, ट्यूशन फीस भी रिसीप्ट में आएगी। टर्म फीस जो बच्चे लोग पे करते हैं वो भी रिसीप्ट में आएगा। कोई फाइन अगर संस्था कलेक्ट करती है वो भी इधर आएगा। लॉकर एंड स्विमिंग पूल होते हैं ना, वो लॉकर प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को, तो उनका जो रेंट मिलता है वो इनकम है, वो भी रिसीट्स में आएगा। एग्जाम फीस, आपके बोर्ड, आपकी यूनिवर्सिटी, ये क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या आप लोगों से एग्जाम फीस कलेक्ट करते हैं तो उनकी रिसीट में आएगा। ये क्या है, ये मैं अभी लास्ट में समझाता हूँ। जैसा अपन ने क्या करा, रिसीट्स की आइटम देखी, किसकी आइटम देखी, रिसीट्स की आइटम देखी। अब अपन ये काट करके बच्चों पेमेंट लिख लो, क्या कर लो, पेमेंट लिख दो। अब पेमेंट की आइटम देखते हैं, ये मैं लास्ट में समझाऊंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे भी है, ये मैं बाद में समझाऊंगा, या शुरू का तो मैं अभी समझा देता हूं। देखो, अगर बैंक में आपका कुछ पैसा जमा है तो वो डेबिट साइड में आएगा। लेकिन अगर बैंक से आपने कुछ ओवरड्राफ्ट, मतलब कुछ थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, आपने शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आपने कुछ पैसा ले रखा है तो उसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। आपका पैसा जमा है तो वो इधर आएगा, और बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो वो इस साइड में आएगा। अगर कुछ ओपनिंग ओवरड्राफ्ट है तो उसे ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट लिख के इधर लिख देंगे। अगर आपका पैसा बैंक में जमा है तो यहाँ आएगा, अगर बैंक से आपने लिया है तो वो इधर ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा। फिर अब खर्चों की बात करते हैं। कोई भी, जैसे आपने सैलरी दी, वेजेस दी, किसी भी साल की दी, आपने प्रीवियस ईयर की दी, 2 साल पहले की दी, आपने एडवांस में पेमेंट करा, करंट ईयर में पेमेंट करा, सारे के सारे पेमेंट साइड में आएंगे। उसी तरह रेंट, टैक्सेस का पेमेंट भी इधर आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप जानते हैं, जनरल कोई भी खर्चा हो जिसे आप कोई पर्टिकुलर हेड में नहीं डाल सकते, उसे जनरल एक्सपेंसेस में डालते हैं, वो पेमेंट भी यहाँ पे आएगा। बैंक का कोई इंटरेस्ट पेमेंट किया, वो पेमेंट में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट में आएगा। ऑडिट फीस का मतलब जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने अकाउंट चेक करने का पेमेंट करते हैं, उसे ऑडिट फीस कहा जाता है, वो भी इधर आएगा। कोई टूर्नामेंट आपने कराया, तो टूर्नामेंट कराया, उसकी इनकम तो कहाँ पे अपन ने इधर लिखी थी ना, टूर्नामेंट यहाँ पे, तो जो खर्चा हुआ वो पेमेंट साइड में लिखेंगे। वेजेस का पेमेंट किया, कोई स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करे, पेमेंट करा। इंश्योरेंस का मतलब आप सबको पता है, इंश्योरेंस का आपने प्रीमियम दिया इंश्योरेंस कंपनी को, कि इसलिए देते हैं, मैं मतलब बता देता हूं, कि कोई नुकसान अगर होगा तो उसका भुगतान, उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी, बदले में आप उसे कुछ पैसा देते हैं, उसे प्रीमियम कहा जाता है। टेलीफोन और मोबाइल का खर्चा पेमेंट में आएगा। बैंक चार्जेस, बैंक अपने को कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो कुछ अपने से चार्जेस लेता है, उसका भुगतान अपन ने किया है तो वो पेमेंट साइड में आएगा। पोस्टेज आपको पता है, स्पीड पोस्ट वगैरह से अपन डाक भेजते हैं, वो खर्चा कोरियर से भेजते हैं, वो खर्चा यहाँ पे आएगा। कन्वेंस,
कन्वेंस का मतलब भी आपको पता है, वापस बता देता हूं। अपन लोकल में आने जाने का रिक्शा भाड़ा, पेट्रोल का खर्चा जो करते हैं ना, उसे कन्वेंस कहा जाता है। इधर उधर आने जाने के लिए उस खर्चे को कन्वेंस कहा जाता है। कोई जैसे आपके कॉलेज में एनुअल फंक्शन होता है, उसका जो खर्चा होता है उसे भी पेमेंट करा आपने तो पेमेंट साइड में लिखेंगे। आपने कोई फिक्स डिपॉजिट, अब क्या है फिक्स डिपॉजिट, क्या आपने 3 साल के लिए बैंक में एफडी कराई, टर्म डिपॉजिट कराई, तो मैंने आपको बताया था भले से रेवेन्यू पेमेंट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सब के सब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगे। तो ये कैपिटल खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ फिक्स असेट, अभी तक जो मैं खर्चे डिस्कस कर रहा था सब रेवेन्यू थे, ये कैपिटल खर्चा है। तो कोई भी तरह का खर्चा हो, रेवेन्यू या कैपिटल, वो रिसीप्ट एंड पेमेंट में आएगा। फिर बुक्स आपने खरीदी, महंगी महंगी बुक्स मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में होती है, तो वो आपका कैपिटल खर्चा है, वो भी पेमेंट साइड में आएगा। फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, इन्वेस्टमेंट खरीदा, ये सब आपका कैपिटल खर्चा है, ये भी पेमेंट साइड में आएगा। फिर न्यूज़पेपर, ये किस तरह का खर्चा है, रेवेन्यू खर्चा है, तो ये भी पेमेंट साइड में आएगा। ऑफिस का कोई और खर्चा है, आपने छोटी मोटी रिपेयर कराई, तो ये सब चीजें जो भी पेमेंट किया आपने इन सब हेड्स में, वो इधर आएंगे। उसके बाद साल के एंड में जो आपके पास कैश बचता है उसे बाय बैलेंस सीडी कैश इन हैंड लिख देंगे, और जो बैंक में पैसा बचा उसे बैंक बैलेंस, बैंक का नाम लिख करके बैंक बैलेंस लिख देंगे। लेकिन अगर आपके पास आपका पैसा बैंक के पास है तो इधर आएगा, लेकिन बैंक ने आपको थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए लोन दे रखा है तो उसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, वो ओवरड्राफ्ट इधर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपन ने समझ लिया। तो आज अपन ने क्या क्या समझा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होते हैं, ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग। नॉन ट्रेडिंग को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, और इसका मेन पर्पस क्या होता है, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। फिर फीचर्स अपन ने देखे, ये कंसर्न रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती है। अपन ने प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फर्क, डिफरेंस भी देखा। मेन चीज यही है कि ये अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट में ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, और ये रिसीट पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। उसके बाद अपन ने नीड को देखा, वेरी सिंपल। और फिर रिसीट एंड पेमेंट में देखा अपन ने, रिसीट दो तरह की होती है, कैपिटल और रेवेन्यू। पेमेंट में अपन ने एक्सपेंडिचर 3 तरह का देखा, कैपिटल, रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई से साल का भी रिसीप्ट हो, कोई से साल की भी रिसीप्ट हो, पुराने सालों की, इस साल की या आने वाले सालों की, जो भी अपन को प्राप्त हुई या रिसीप्ट, उसे अपन रिसीप्ट साइड में लिख लेंगे। जो भी पेमेंट अपन ने किया है, भले से पिछले साल का, करंट ईयर का या आने वाले सालों का अपन कर रहे हैं, वो अपन पेमेंट साइड में लिख देंगे। डिटेल में अपन ने टाइप ऑफ रिसीट्स एंड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर को अपन ने देखा। उसके बाद में अपन ने रिसीट एंड पेमेंट का प्रोफॉर्मा देखा। शुरू में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक होता है, और एंड में ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक होता है। एक एक जो भी ये आइटम्स है, इन सब का मतलब मैंने आपको समझाया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, वहां अपन समझेंगे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बच्चों पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो मेरे नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, आप अपनी परेशानी पूछिए। सो प्लीज कीप ऑन स्टडिंग and stay home, stay